Assalamu alaikum students. Today we will start next chapter, that is chapter number 5, physical states of matter. Matter, as you know, it is anything which occupies space and has weight. तो matter mostly 3 states में exist करता है, that is solid, liquid and gas. इस chapter में हम study करेंगे about typical properties of solid, liquids and gases. इसके अलावा हम इस chapter में different melting point और freezing point और बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को भी स्टडी करेंगे. इसके अलावा हम इस चैप्टर में डिफरेंट गैशियस लॉस और हम इस चैप्टर में वेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, इन सारी चीज़ों में डिफरेंस को भी स्टडी करेंगे. सो गर्ल्स, फॉर एग्जांपल हम इस चैप्टर में ये स्टडी करेंगे एज यू नो दैट मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इज़ वाटर. सो वाटर के डिफरेंट यूजेस होते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस. इसके अलावा जो माउंटेनियर्स होते हैं दे कैरी विद देम प्रेशर कुकर. सो प्रेशर कुकर के एडवांटेजेस को इस चैप्टर में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे कि हाउ प्रेशर कुकर हेल्प्स इन एफिशिएंट कुकिंग ऑफ फूड एंड हाउ इट हेल्प्स टू कुक द फूड क्विकली. सो इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट गैशियस स्टेट एंड टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. तो गैसेस की जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें नंबर 1 प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, इफ़ देयर इज़ हायर कंसनट्रेशन और दूसरी साइड पे इनकी कंसनट्रेशन लो है, सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन. क्योंकि पार्टिकल्स हमेशा हायर कंसनट्रेशन से मूव करते हैं टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव rotten eggs, its smell will spread throughout the room. Or if you open the bottle of perfume at one corner of the room, its smell will spread throughout the room. So these are the some common examples of diffusion. Next property of gases is called as effusion. Effusion हम basically कहते हैं escape of gas molecules through a hole one after another. For example, if we have a gas in any container and it is divided into 2 portions and gas molecules are present on one side, if we make a hole, small hole in this, so the movement of particles will start from this towards the other side. Because the escape of gas molecules through a hole one after the another, this process is called as effusion. डिफ्यूजन तो होती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन, वाइल एफ्यूजन इज़ different from diffusion because it is the escape of gas molecules through a hole one after the another without cooling. So in our book also figure 5.1 shows the process of diffusion and effusion. Next property of gas is pressure. जितनी भी gases होती हैं they exert pressure on the walls of the container. Pressure basically होता है force exerted by a gas on a unit area. Force exerted by gas on unit area is called as pressure. So at any point gases exert equal pressure. For example, यहाँ पे आपकी बुक में कुछ units दिए हैं pressure के. At sea level at 0 degree centigrade. At 0 degree centigrade, 1 atmospheric pressure, it is always equals to 760 mm of mercury. यानी एक atmospheric pressure sea level के ऊपर it is equals to 760 mm of mercury or it is also equals to 760 torr. So, but when we consider the units of pressure, तो SI units हम लेते हैं, standard international units. Pressure के जो SI unit होता है it is Pascal. So 1 Pascal equals to the force of 1 Newton exerted on the area of 1 square meter. For example, we can say that 1 atmosphere is equals to 101.325 kilopascals, or it is also equals to 1.01325 into 10 raised to power 5 pascals. क्योंकि किलो का मतलब होता है 10 raised to power 3. अगर आप पॉइंट को पीछे से आगे से पीछे लेके जाएंगे 2 पॉइंट्स तो ये 10 raised to power 2 हो जाएगा और 10 raised to power 2 और 10 raised to power 3 इज इक्वल्स टू 10 raised to power 5.
सो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स भी इसके इक्वल होता है। इसके अलावा जितनी भी गैसेस होती हैं दे आर वेरी इजी टू कंप्रेस, क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत फार अपार्ट होते हैं। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं दैन द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज। सो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि व्हेन वी अप्लाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज। This is because gas molecules are very far apart. Mobility means that gases can flow, they can be moved from one place to another, they can be travel through pipes over long distances. यानी किसी भी जगह से गैस के पार्टिकल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैसेस की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, so they are very easy to move over through the pipes over the long distances. Density means that gases have very low density. Density basically होती है mass per unit volume. तो गैसेस की डेंसिटी क्योंकि बेसिकली कम होती है, दे हैव लो डेंसिटी, लेकिन जब हम गैस को कूल करेंगे तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की डेंसिटी आपकी बुक में दी हुई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऑक्सीजन की डेंसिटी होती है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1.4 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। वाइल जब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करके ज़ीरो पे चले जाते हैं तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, इट विल बिकम 1.45 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप MCQs में भी आपको आ सकता है, आप इन्हें डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। सो दीज आर सम टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, जिसमें हमने डिफ्यूजन, इफ्यूजन, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और डेंसिटी को स्टडी किया।